Now we are going to start with exercise 6.2 triangles, similar triangles का चैप्टर है ये वाला. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस EC. इसको हम x मान लेते हैं, सपोज ये x है. दिस लाइन DE is parallel to BC. In triangle ABC, line DE is drawn parallel to BC. Therefore, AD upon BD is equals to AE upon EC. बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. इन ट्राइंगल, इन फिगर वन, इन ट्राइंगल ABC, DE is parallel to BC. Therefore, AD upon BD, it is equals to AE upon EC. Let EC is equals to x. EC हमने x मान लिया. AD is given 1.5 divide by 3. It is equals to 1 divide by x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा 1.5x is equals to 3. x is equals to 3 divide by 1.5 that is equals to 2. तो इसका 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. Second part, in this triangle we have to find AD. AD को x मान लो. D is drawn parallel to BC. Now in figure 2, same चीज. In triangle ABC, D is parallel to BC. Therefore AD upon BD, it is equals to AE upon EC. AD is x, BD is 7.2, AE is 1.8 and it is 5.4. Now again cross multiply कर दो. It is 5.4x is equals to 1.8 into 7.2. X is equals to 1.8 into 7.2 divided by 5.4. 18 3 जा 54 होता है, तो 1.8 3 जा 5.4. तो it is 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. Then x is equals to 2.4. ये इसका आंसर हो जाएगा. It is the first question of exercise 6.2. Now, second question. E and F are points on the sides PQ and PR of triangle PQR. It is triangle PQR. PQR. EF are the points. E is point on PQ. F is point on PR. Respectively of triangle. For each of the following, EF is parallel to, state whether EF is parallel to QR. EF जो है ये QR के पैरेलल है या नहीं है, हमने ये बताना है. It is by converse of BPT. If the lines are in ratio, then it will be parallel. Now we will check. PE upon EQ must be equal to PF upon FR. फर्स्ट केस के लिए PE is 3.9, EQ is 3, PF is 3.6, FR is 2.4. कटिंग कर लेते हैं. 1.3 इसकी कटिंग कर लेते हैं. 1.2, 1.8, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 upon 2, it is 1.5. This is not equal to this. फर्स्ट केस में ये इक्वल नहीं है. Therefore, EF is not parallel to QR. सेकेंड केस में P is 4, Q is 4.5,
PF is 8, it is 9. Now 2 4 जो 8, 2 4.5, these are equal. तो सेकेंड केस में दिस इंप्लाइज EF is parallel to QR. ये सेकेंड केस हो गया हमारा. थर्ड केस में चेक कर लेते हैं. थर्ड केस में PQ is 1.28, EQ is PR is PR, PQ upon PR. तो PQ is 1.28, PR is 2. PR is 2.56. Next, PE is 0.8, PE is 0.18 and PF is 0.36. Now see the triangle PQR in which PQ upon PE, it must be equal to PR upon PF. PQ upon PE, it must be equal to PR upon PF. If they are equal, if this ratio is equal, then lines will be parallel. Now we will check this. PQ upon PE, 1.28 upon 0.18. It must be equal to 2.56 upon 0.36. Now, it is 128 by 18 and it is 256 by 36. इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 18, 128. These are equal. Both are equal. Therefore, EF is parallel to QR. तो इस केस में भी EF जो है that is parallel to QR because ratios of these two are equal. इनकी दोनों की रेशियो जो है वो सेम है. Therefore, lines parallel है. Third question. Now, in this figure 6.18, LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. Prove AM upon AB must be equal to AN upon AD. Now, take this triangle ABC. In triangle ABC, ML is parallel to BC. It is given. Therefore, AM upon AB, that is equals to AL upon AC. It is by converse of BPT. ये BPT के कन्वर्स से हमारा प्रूव हो गया. By converse of BPT. Now next, in triangle ADC. In triangle ADC, LN is parallel to CD. LN CD के पैरेलल है. Therefore, AN upon AD, it is equals to AL upon AC. इसको 1 ले लो, इसको 2 लो. Now see this. It is AL upon AC, it is AL upon AC. ये दोनों साइड इक्वल हैं. Therefore, लेफ्ट साइड भी हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. So from 1 and 2, AM upon AB, it is equals to AN upon AD. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो गया. फोर्थ क्वेश्चन. इन दिस फिगर DF is parallel to, DF जो है it is parallel to AC and DF is parallel to AE. DE is parallel to AC है and DF is parallel to AE है. ये हमें गिवन है. We have to prove BF upon FE is equals to BE upon AC. Now, take this triangle ABE. In triangle ABE, ध्यान से, DF is parallel to AE. ये हमें गिवन है. Therefore, ध्यान से देखो, BF upon FE, it is equals to BD upon AD. इसको नंबर 1 लिख लेते हैं. Now take triangle ABC. In triangle ABC, ABC में क्या है? DE is parallel to AC. Therefore, BD upon AD, it is equals to BE upon EC. इसको नंबर 2 ले लो. Now,
इट इज बी डी अपॉन ए डी, इट इज बी डी अपॉन ए डी, दोनों इक्वल हैं आपस में, देयरफॉर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बी एफ अपॉन एफ ई इट इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस फिगर D is parallel to OQ and DF is parallel to OR. We have to prove EF is parallel to QR. Now, first take, in this triangle POQ, in triangle POQ, D is parallel to OQ. ये हमें गिवन है, देयरफॉर PE अपॉन EQ इट मस्ट बी इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। इसको लिख लो नंबर 1। नाउ टेक ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR ध्यान से DF इज पैरेलल टू OR, देयरफॉर PD upon DO it must be equal to PF upon FR। इसको लिख लो नंबर 2। नाउ सी, इट इज PD upon DO, इट इज PD upon DO, दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we see that PE upon EQ, PE upon EQ it is equals to PF upon FR। अब आप फिगर में ध्यान से आओ, PE upon EQ एंड PF upon FR इनकी रेशो आपस में इक्वल है, ये रेशो और ये रेशो। अब ये कौन सी ट्राइंगल में बन रही है, PQR में बन रही है, जब EF इसके पैरेलल होगी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर EF इज parallel to QR, it is by converse of BPT, BPT का कन्वर्स लगा और ये आपस में पैरेलल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, इसमें भी देखो ध्यान से, OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली पे पॉइंट्स पे काट रही है, सच दैट AB दिस लाइन इज पैरेलल टू PQ, ये PQ के पैरेलल गिवन है, तो इस ट्राइंगल को ले लेंगे हम। इसके बाद AC इज पैरेलल टू PR, AC जो है ये PR के पैरेलल गिवन है, तो इस ट्राइंगल में ले लेंगे, दोनों में BPT लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ चेक दिस, पहले लेते हैं ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ AB इज पैरेलल टू PQ, AB PQ के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, therefore OA upon AP it is equals to OB upon BQ, इसको लिख लो नंबर 1। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल OPR AC is parallel to PR, therefore OA upon AP it is equals to OC upon CR, इसको लिख लो नंबर 2। नाउ अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास OA अपॉन AP, ये भी OA अपॉन AP, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हमारे पास हो गया OB अपॉन BQ, फ्रॉम 1 and 2 OB अपॉन BQ it is equals to OC upon CR। अब ध्यान से फिगर में आ जाओ, OB अपॉन BQ, ये दोनों साइड्स की रेशो OC अपॉन CR की रेशो के इक्वल है, देयरफॉर BC किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के पैरेलल हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव,
देयरफॉर दोनों लाइंस पैरेलल, BC इज पैरेलल टू QR। यही हमने प्रूव करना था। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यूजिंग थ्योरम 6.1 बीपीटी यूज करके, 6.1 कौन सी थ्योरम है? बीपीटी है। इसको यूज करके हमने ये प्रूव करना है लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। चलो बड़ा इजी है। ये एक पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम। दिस इज ए ट्राइंगल इन विच ABC is a triangle in which D is midpoint of BC and DE is parallel to BC. Prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. हमने ये प्रूव करना है, ये E को AC को बाइसेक्ट करेगी। तो गिवन है हमारे पास, गिवन in triangle ABC D is midpoint of AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है and DE is parallel to BC। To prove E is midpoint of AC, ये हमने AC का मिड पॉइंट प्रूव करना है। ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट प्रूव करेंगे। प्रूफ बड़े ध्यान से देखो आप। अब इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इट इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इट इज बाय BPT। बीपीटी से हमें ये पता लगता है। नाउ D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू DB। तो यहां AD DB की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन AD इट इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, देयरफॉर AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 और AE किसके इक्वल हो गया हमारे पास? EC के इक्वल हो गया। देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट, यूजिंग थ्योरम 6.2, ये थ्योरम यूज करके प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कोई लाइन जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो सेम हमें ट्राइंगल गिवन है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इट इज ट्राइंगल ABC in which D and E are मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। तो गिवन है, गिवन दोबारा मैं आपको बता देता हूं। इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें? D is parallel to BC by using converse of BPT. Proof: AD is equals to DB and AE is equals to EC। ये हमें गिवन है क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स हैं। Therefore, we can say that AD upon DB it is equals to AE upon EC। जब इनको काटेंगे दोनों के आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC बिकॉज
रेशो अगर इक्वल होगी दो साइड्स की जो पॉइंट ऑफ डिवीजन से, तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इट इज बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB DC के पैरेलल गिवन है and diagonals intersect at point O. Show that this. तो पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है ABCD. It is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB DC के पैरेलल है और इसके डायगोनल AC एंड BD दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने ये प्रूव करना है। AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूफ। अब देखो ध्यान से, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। फ्रॉम O draw a line OP parallel to AB. From O draw a line OP parallel to AB. हमने OP को AB के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। नाउ प्रूफ, ये चल रहा है हमारा। Now in triangle DAB, in triangle DAB, OP is parallel to AB. Therefore, DP upon AP, it is equals to DO upon BO by BPT. अगर एक लाइन ड्रॉन पैरेलल है तो वो उसके पैरेलल होगी, रेशो में बांटेगी साइड्स को। नाउ अगर OP हमने AB के पैरेलल ड्रॉ की है तो AB हमें गिवन है CD के पैरेलल, देयरफॉर OP CD के भी पैरेलल हो जाएगी। OP इज पैरेलल टू CD आल्सो। तो इन ट्राइंगल ADC ले लेते हैं अब दोबारा। इन ट्राइंगल ADC OP is parallel to DC because OP is parallel to AB and AB is parallel to DC. Therefore, इसकी साइड्स भी रेशियो में आएंगी जब ये DC के पैरेलल होगी, तो इसमें भी लिखेंगे DP अपॉन AP it is equals to CO अपॉन OA। ये भी बाई BPT हो गया और इसको लिख लेते हैं नंबर 2, इसको लिखते हैं नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखें, ये भी DP अपॉन AP, ये भी DP अपॉन AP, ये दोनों इक्वल, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 DO अपॉन BO इट इज इक्वल्स टू CO अपॉन OA। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO। तो आप क्या करो, अल्टरनेटो कर दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको बोलते हैं अल्टरनेटो बाय अल्टरनेटो। OA ऊपर ले जाओ तो ये हो गया OA अपॉन OB इट इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है कोई, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O सच दैट रेशियो इक्वल गिवन है। शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमने इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। चलो पहले हम ट्रेपेजियम ही बना लेते हैं, जो चीज हमने प्रूव करनी है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि इसकी साइड्स पैरेलल हम गिवन में शो नहीं करेंगे। ABCD इज ए ट्रेपेजियम।
तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O पॉइंट पे हम इनको क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं। दिस इज O। तो कंस्ट्रक्शन में आप पहले ले लो, फ्रॉम O ड्रॉ दिस लाइन OP पैरेलल टू AB। हम दोनों साइड के पैरेलल ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है AB इज पैरेलल टू DC है या नहीं है, तो OP को हमने क्या किया, AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। नाउ प्रूफ ध्यान से देखना है। इन ट्राइंगल DAB, पहले क्या करेंगे हम, DAB ट्राइंगल ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में OP इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर AP अपॉन PD, साइड किसी तरफ से भी और रेशो में होगी। इन ट्राइंगल DAB हमने लिया, इसमें OP इज पैरेलल टू AB है हमारे पास, OP AD के पैरेलल है, देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। इसको लिख लेते हैं हम नंबर 1। नाउ हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये हमें गिवन है। और हमारे पास यहां पे है OB अपॉन OD, तो यहां भी अल्टरनेटिव कर दो, OB को यहां ले जाओ, CO को यहां ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, OB को इधर ले गए, AO अपॉन CO इट इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। नाउ इसको ध्यान से देखो, ये भी OB अपॉन OD है, ये भी OB अपॉन OD है, तो फ्रॉम 1 and 2 इसको 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन CO इट इज इक्वल्स टू AP अपॉन PD। नाउ ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये पॉसिबल तभी होगा जब OP जो होगी वो DC के क्या होगी, पैरेलल होगी, व्हेन OP इज पैरेलल टू DC। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इन ट्राइंगल हम दोबारा लिख देंगे ADC इन ट्राइंगल ADC AO अपॉन CO इट इज इक्वल्स टू AP अपॉन PD। प्रूव्ड, अबव किया हमने इसको, देयरफॉर हमारी साइड PO इज पैरेलल टू या OP इज पैरेलल टू DC हो जाएगी। नाउ अब हमें पता है OP जो है, OP इज पैरेलल टू DC एंड OP इज पैरेलल टू AB, therefore AB is parallel to DC. This implies ABCD is a trapezium। ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज 6.2 आपकी फिनिश हो गई।